You must have got a good rank plus good quota seat also. या तो उस टाइम में पल्मोनोलॉजी क्यों चूज करी? मुझे था कि मुझे थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है. Doing your MD, all right. What's the career trajectory like? So usually you either go for SRship or DM or some fellowship. So now is it an end branch or doing a DM is a compulsion? It's not a compulsion. It's an end branch if you want it to be, and then also depend करता है कि आप कहाँ से graduate करके आ रहे So what kind of personality trait is best suited for this branch? हैं. You have that knack for diagnostics कि आपको diagnosis वगैरह complex cases करना पसंद है. You go for it. How soon pulmonologists should start their own private practice? The sooner the better. But it also depends कि how confident are you from your training. So hey, is this branch not suitable for ladies? A lot of girls come to me and tell me कि हमें इतनी बार casually बोला गया है कि ये ब्रांच तो मत लो because तुम लोग के लिए गायनी सही होता है. What do you think is the earning potential of this branch? Like immediately after doing MD, 10 years down the line and 20 years down the line. Hey guys, welcome to the Nachiket Bhatia show. Women in the field of pulmonology. Something which is unheard of, and that's why our today's guest is a consultant pulmonologist trained at BHU with clinical experience across India, the NHS and international healthcare system, a TEDx speaker, best-selling author of 3 pulmonary medicine books, mentor to over 25,000 doctors online, and an advocate for alternative medical career pathways. She combines clinical expertise with global exposure, medical education, and digital leadership. Today, she joins us to talk about pulmonology as a career, global opportunities, financial realities, and the future of respiratory medicine. Let's put our hands together and let's welcome Dr. Dipanjali Sharma. Hi, Dr. Dipanjali, and welcome to the Nachiket Bhatia show. Thank you so much for having me. Dr. Dipanjali, you have chosen pulmonology as your career, a career in which women normally do not get into much. So, we are going to explore the field with you in detail. But before that, I would like to know your own journey. How did you get into the field of MBBS? What made you choose pulmonology as your own career? Okay, so मेरी journey it starts right from I'm the most stereotypical kid जो कि who always wanted to be the doctor. So my mom is a PhD mathematics and my dad is a pulmonologist. We were two sisters. तो बचपन से था कि I'm the elder one, so I want to be like papa, and the younger one wanted to be like mom. So एक डॉक्टर बनेगी, एक इंजीनियर बनेगी, ऐसी था शुरू से. But eventually क्या हुआ कि when we were growing up, तो पापा like कॉन्ट्री टू वॉट मोस्ट पीपल थिंक कि डॉक्टर हैं तो अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाएंगे, ऐसा यूजुअली था नहीं. लाइक माई डैड डिडंट वांट मी टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज ही वॉज सीइंग ऑल द चेंजिंग टाइम्स जो डॉक्टर्स के साथ स्ट्रगल्स चल रहे हैं. ही वॉज ऑलवेज लाइक कि आई कुड ऑलवेज डू मैथ्स एज वेल एंड बट आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बायोलॉजी कि पापा जैसा बनना है करके. तो फिर इवेंचुअली माई डैड लाइक सैट मी डाउन वन डे 3 AM इन द मॉर्निंग टेलिंग मी कि नहीं देखो मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उससे आधी मेहनत करोगी तो भी तुम लाइक यू विल डू मच बेटर इन सम अदर फील्ड एज वेल, चूज़ कर लो कुछ. बट नेक्स्ट डे अगैन आई वॉन्टेड टू बी द सेम थिंग कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है. तो ऐसे करके तैयारी की 11th 12th. लाइक 12th के बाद जब मैंने दिया था competition तो couldn't clear it. I was getting dental seats but I still wanted to try and give one more chance to myself. तो उसके बाद एक साल I sat at home, prepared, and then उसके बाद I gave the exams. So luckily cleared a couple of entrances. तो हम लोग के टाइम BHU mains pre होता था, AIPMT mains pre होते थे. तो सारे एग्जाम्स दिए थे and then ultimately ended up with BHU and that is how got into MBBS. फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मतलब MBBS में शुरू में तो लाइक नेवर थॉट ऑफ BHU. आई वॉज लाइक कि मुझे घर के पास रहना है एंड आई गॉट अ गुड रैंक इन वेस्ट बंगाल एज वेल. तो आई वॉज लाइक कि घर मतलब यहीं कोलकाता में कॉलेज ले लेना है. बट माई डैड वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि नहीं BHU मिला है तो तुम डोंट लीव इट, BHU ले लो. और हमारे टाइम ये भी होता था ना कि वंस यू आर इनसाइड द कॉलेज, जैसे कि एम्स में है, लाइक एम्स वाले क्या होता है कि दे इवेंचुअली गेट इनटू एम्स एंड PG एज वेल. तो BHU में भी रहता है ऐसा. तो माई डैड वॉज कि यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू टेक BHU. इनिशियली आई डिड नॉट लाइक इट. वहाँ पे तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. एंड देन आई स्टेड इन वेस्ट बंगाल मूविंग टू UP और वहाँ का एकदम कल्चर, आई नॉट ग्रोन अप इन UP. सो वहाँ का कल्चर इट वॉज़ वेरी,
आई फेल्ट ऑबनॉक्शियस एट फर्स्ट, बट धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगा. लाइक नाउ आई लव बनारस, आई लव यूपी. बट उस वक्त एकदम से ना बहुत कल्चरल चेंज आया था बहुत वहाँ पे, तो पसंद नहीं आता था. एंड देन इवेंचुअली ट्रेनिंग के टाइम, MBBS में ट्रेनिंग के टाइम, आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांटेड टू टेक सम एंड ब्रांच, लाइक स्पेशलिटी वाली ब्रांच, नॉट अ जनरल ब्रांच, लाइक नॉट जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन. तो आई वॉज इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स रेस्पिरेटरी मेडिसिन बिकॉज आई हैड ऑल्सो सीन माई डैड्स, वो जो एक्सपोजर जो यूजुअली बहुत लोग को नहीं मिलता है मेडिकल कॉलेज में रेस्पिरेटरी मेडिसिन का, आई हैड दैट एक्सपोजर बैक होम. आई हैड सीन माई डैड कि क्या क्या होता है, कैसी लाइफ है. सो I was interested in respiratory medicine and then eventually took it. That is how. क्या कल्चर चेंज लगा BHU आके? BHU जैसे कि भाई UP, पहले 1-2 साल में नफरत क्यों हो रही थी जगह से? because not because of BHU, because of the place itself. Like I had fantasized कि मेडिकल कॉलेज, मतलब because जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनको लगता है मेडिकल कॉलेज जाके तो पूरा मतलब खुल जाएंगे, मतलब बस लाइफ में ऐश हो जाएगी. तो वहाँ जाके BHU में लाइक क्लासेस वगैरह एकदम से तो लगता था कि भाई फिर से वही बैग टांग के फिर स्कूल की तरह जा रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं. एंड देन आई हैड ग्रोन अप इन वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल एट दैट टाइम वाज like has always been very liberal in a lot of sense, especially for females as well. तो हमें वहाँ पे like we had not faced little things like eve teasing road पे ऐसे वैसे. तो यूपी में जाके had to take care of everything, and then अचानक से आप ना मतलब एक होम एनवायरनमेंट से निकलते हो, कॉलेज में जा रहे हो, मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, रोड्स पे जा रहे हो तो भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और हमारे टाइम तो टाइमिंग्स का बहुत था, एंड बनारस एट द टाइम वॉज नॉट दैट प्रोग्रेसिव, तो वो भी डील करना होता था. एंड कॉलेज में फिर पढ़ाई भी, और MBBS में घुसने के बाद लगता है कि मतलब बस आंधी आई और चली गई, मतलब समझ नहीं आता है कि क्या क्लासेस चल रही हैं, कैसे हो रहा है. तो टू गेट द हैंग ऑफ एवरीथिंग इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई डिड नॉट लाइक इट एट द स्टार्टिंग. तो धीरे धीरे पसंद आ गया. Was BHU special in any way? BHU, it's a central university. तो वहाँ पे at the time I remember 44 general seats या 42 general seats were there and total batch 84. हमसे ऊपर seniors 60 का बैच होता था, हमारे juniors फिर 90 100 कुछ हो गए थे. Small batches, so you would get a good exposure. Teacher student ratio अच्छा था वहाँ पे. फिर PG में भी जैसे कि there is 50% reservation for BHU candidates, जैसे बिकॉज लाइक जो आप जैसे बाकी स्टेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे क्या है कि यू ऑल्सो गेट द स्टेट डोमिसाइल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर PG. सो यू आर एलिजिबल फॉर द ऑल इंडिया PG वाले, जैसे नीट PG में जो ऑल इंडिया सीट्स हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द स्टेट काउंसलिंग. फॉर अस इन BHU is like a state in itself. Like Supreme Court has said कि ये central university, it's a state in itself. So us BHU graduates are not eligible to apply for the state quota. So they get the quota for the state that is BHU itself. तो क्या होता है कि since the batches are small, so ये होता है कि seniors बहुत known होते हैं, हमारे ही seniors होते हैं जो कि PG में भी रहते हैं, and there are some who take the seats from all India seats. तो एक ना मतलब वो कैमराडरी बहुत है BHU में, like wherever you go across the world, if you are from BHU, they will treat you like their own. तो ये सब चीज़ें रहती हैं. दैट इज़ वाई BHU इज़ अ लिटिल डिफरेंट. एंड देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो स्टाइपेंड इज़ ऑल्सो बेटर कंपेयर टू द स्टेट कॉलेजेस. ऑल दीज थिंग्स, टीचर्स आर वेरी नाइस. द फैकल्टी, हम जो बुक्स पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में फैकल्टी के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं, ऑथर्स रहते हैं कई बुक्स में. वो जैसे हैरिसन में वी हैड अ प्रोफेसर जो कि ही हैज़ रिटन chapter in Harrison itself, Dr. Shyam Sundar Agarwal, he is retired now. So मतलब उनके साथ उनसे पढ़ना, it's a different experience. That is why BHU is special. That's Yeah, nice. yeah, it's very nice. Getting an author from Harrison to teach you. Yes. Imagine that. A lot of departments has had those, like pediatrics में and ortho में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं. तो आपको ना वो भी सीखने मिलता है कि you have to be like them eventually. कुछ करना है ऐसे करके. So when it was time for you to choose your postgraduate branch, I'm sure general medicine must be an option. You must have got a good rank plus good quota seat also. Yeah. तो उस टाइम pulmonology क्यों choose करी? लाइक आई सेड, मतलब मुझे ना फाइनल ईयर से मुझे आइडिया था कि क्योंकि सिंस माई डैड वॉज ऑल्सो देयर, सो आई हैड एन आइडिया दैट आई वॉन्टेड टू गो टूवर्ड्स मेडिकल साइड ऑफ थिंग्स. एंड ऑल्सो मुझे था कि मुझे थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है. अब PG में क्या था कि आई हैड अ कपल ऑफ ऑप्शन लाइक पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डर्मैट एक्सेट्रा. तो मुझे बहुत वो होता है ना कि मेरे पापा को मैंने देखा था कि हाँ ही यूज्ड टू गो फॉर नाइट ड्यूटीज़ क्योंकि रेस्ट में एमरजेंसीज वगैरह भी रहती हैं. तो आई वुड फैंटेसाइज कि मुझे ना मतलब वो
मुझे मुझे वो पूरा होलसम लाइफ चाहिए कि जो एक फैसिनेशन होता है कि अरे पेशेंट को देख के ना समझ में आता है कि ओ मतलब देख के क्या समझ में आ रहा है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है ऐसे करके. देन रेस्पिरेटरी में आई कुड गेट द होल पिक्चर. लाइक एमरजेंसीज भी हैं, ओपीडीज भी हैं. डोमैट इज़ लाइक अ लिटिल लेट बैक ब्रांच, स्पेशलिटी है तो भी. जनरल मेडिसिन आई डेंट वॉन्ट टू गो फॉर इट. तो पीजी में जब आई वॉज गेटिंग ऑप्शंस, बट मेरा हमेशा से ये था, लाइक आई स्टिल रिमेंबर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था बैच में, एंड पीपल आर लाइक चैटिंग अबाउट हु वांट्स विच ब्रांच, एंड यू नो हम लोग वोट कर रहे थे ऐसे. एंड देन फॉर रेस्पिरेटरी मेडिसिन आई वॉज द ओनली वन हु वोटेड कि भाई मैं लूँगी रेस्पिरेटरी मेडिसिन. एंड हमारे कॉलेज में रेस्पिरेटरी मेडिसिन वॉज अ टोटल मेल डोमिनेटेड ब्रांच लाइक ऑर्थोपेडिक्स. तो नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि लड़कियाँ लेंगी, एंड रेस्पिरेटरी कोई फर्स्ट चॉइस में उस वक्त लेता भी नहीं था. तो बट आई हैड फिल्ड आउट चॉइसेस इन द मैनर कि भाई रेस्पिरेटरी मेडिसिन, देन ईएनटी, ऑफ्थैल, साइकेट्री, एंड देन इवेंचुअली वो रेडियो मेडिसिन जो सीधा से सब लगा देते हैं. तो फर्स्ट काउंसलिंग में द फर्स्ट सीट दैट ओपनड अप इन अनरिजर्व्ड, आई गॉट इट, एंड देन आई वॉज हैप्पी एंड डिड नॉट अपग्रेड नेक्स्ट काउंसलिंग बिकॉज नीट काउंसलिंग्स आर ऑल्सो वेरी अनरिलायबल. उस वक्त तो केस वगैरह भी हो जाता था. I did not upgrade. I could have gotten medicine or pediatrics eventually, but didn't want to upgrade. My dad was wanting me कि तुम upgrade कर लो, like think about it. I was sure, I was happy कि हाँ मुझे मिल गया, and I am not going to sacrifice it. So that is how I ended up with respiratory medicine. So were you happy with the same going back to the same college? Yeah, very happy, very happy. I wanted to go back to the same college because मतलब I had seen my teachers, they had taught me. उस वक्त respiratory medicine के faculty हमें MBBS में पढ़ाते थे. So we had seen, we knew our faculty, we knew everybody there. Seniors were also known. So I was very happy. जब पहले मुझे सीट अलॉट हुई थी तो यूजुअली 3 राउंड्स होते हैं. तो ऑल द सीनियर्स बॉसेस जो थे डिपार्टमेंट में, दे थॉट कि लड़की ने लिया है तो हाँ मतलब अपग्रेड तो कर ही लेगी बाद में. एंड देन व्हेन वी रिपोर्टेड दे वर वेरी शॉक्ड, अरे कैसे मतलब तुमने कैसे ले लिया करके. एंड बहुत वैसा था कि लड़कियां कह रही वी आर सो प्राउड ऑफ यू, मतलब इट वाज लाइक कि बहुत बैटल फील्ड में जा रहे हैं. बिकॉज तो ऐसा ना वैसे नॉट सूटेबल फॉर लेडीज़ कहते हैं, बट इट वाज नाइस. मतलब मुझे तो वही चाहिए थी तो मुझे मिल गया. आई वाज वेरी हैप्पी. So hey, is this branch not suitable for ladies? नहीं, it's this is one of the misconceptions about this branch. I suppose it's mainly because India is an endemic country for TB. एंड देन वो ना एक रूमर होता है जो चलता है कि फीमेल्स को टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट विच इज़ नॉट एंटायरली ट्रू. फीमेल्स जैसे लोग कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस एक्चुअली अफेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो ऑल स्पेशलिटीज आर डीलिंग विद इट इन एनी और अदर फॉर्म. रेस्पिरेटरी का क्या है कि हाँ हम इन्फेक्शंस वगैरह देख रहे हैं तो ऐसा होता है, बट इट्स नॉट अनसूटेबल फॉर फीमेल्स. यू कैन गेट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन इन एनी ब्रांच फॉर दैट मैटर. कि अब डर्मेटोलॉजी में हैंसन्स का एक रिस्क रहता है, सर्जिकल ब्रांचेस में ब्लड बोन इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है, नीडल प्रिक्स रहते हैं, सब रहता है. इन द सेम मैनर अब अगर आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देख रहे हैं तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, बट इट शुडंट बी लाइक कि आपको ब्रांच अगर ये है तो आप कोई ब्रांच छोड़ दें बिकॉज वहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कि कोई चांसेस ज़्यादा है किसी चीज़ के. यू एक्चुअली लर्न टू यू लर्न प्रिवेंटिव मेजर्स टू डील विद द ब्रांच. Tell me about your residency days. First year में कैसा था आपके साथ? First year was a little hectic because respiratory में it's like emergencies की ड्यूटीज़ अलग लगती हैं, वार्ड अलग लगता है, प्रोसीजर्स के अलग लगते हैं. बट BHU की ब्यूटी ये होती थी कि वहाँ पे ना हर साल का ड्यूटीज़ डेडिकेटेड होते हैं कि किस ईयर के रेजिडेंट को क्या करना है. एंड देन सीनियर रेजिडेंट्स भी रहते हैं वहाँ पे जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में यूजुअली नहीं रहते. फैकल्टी भी फुल फ्लेजेड फैकल्टी थी. वी हैड 3 प्रोफेसर्स, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर. कैंडिडेट्स में 5 पर बैच रहता था. OPDs वर वेरी हेक्टिक, अराउंड 400 पेशेंट्स पर डे. और फर्स्ट ईयर्स को एमरजेंसी सारे देखने होते हैं OPDs में भी और राउंड द क्लॉक. तो वो थोड़ा हेक्टिक रहता है. पर्सनली थोड़ा सा लाइक एक हाँ इवेंचुअली another girl had also joined, a female batchmate has also had joined from the foreign seat. BHUs में एम्स में ना फॉरेन कैंडिडेट्स की सीट भी रहती है, तो उस पर उन्होंने भी ज्वाइन किया था. तो शी वुड बी देयर विद मी. बट वो होता है ना थोड़ा सा सीनियर्स हैं तो डांट पढ़ना और सब करना, तो डांट वाट तो पड़ती थी बहुत अच्छे से. तो फर्स्ट ईयर में तो थक जाते थे काफ़ी. और ये भी होता है ना कि कभी कभी ऐसे थोड़े बहुत कैजुअल कमेंट्स जो कि लड़कियां हैं तो हम तो सोचते थे कि लड़कियां काफ़ी अच्छा काम कर लेती हैं, और फिर कभी कभी होता है तो डांट पड़ती थी. बट हाँ आई वुड नॉट से कि एंटायरली बुरा था या बहुत टॉक्सिक था, बट फर्स्ट ईयर में ना वही होता है कि एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लगता है. यू नॉट एबल टू गेट द हैंग ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन अराउंड यू. ऊपर से पेशेंट्स इतने सिक होते हैं तो वो तो रहता है, टफ होता है फर्स्ट ईयर काफ़ी.
मैंने सुना एक बात, आप बता सकते हो कि सच है कि नहीं, कि जो नॉन BHU रेजिडेंट्स आते हैं वहाँ पे, उनके लिए दे मेक इट अ हेल। BHU में ऐसा है ना कि डिपार्टमेंट्स में बहुत वेरी करता है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स आर सुपर टॉक्सिक इन BHU. कौन से? General medicine is very toxic. Gynecology is toxic, even for the internal candidates. Pediatrics may be so because of the duty hours and patients type के जो रहते हैं. Respiratory medicine में I have not seen कि external candidate, like we had a candidate from South India and a lot of seniors from outside of the BHU वाला. नेवर फेस्ड लाइक कि उनको कोई ऐसे कोई वैसा, मतलब हम उनको तो हमें देख के लगता था बिकॉज यार उनसे तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टली पेश आ रहे हैं करके, बिकॉज एंड लाइक हिंदी में बात करना सिखाना. एंड आई हैड अ जूनियर फ्रॉम मदुरई, तो वी वर वेरी अकोमोडेटिंग, वी वुड ट्रांसलेट जोक्स. इफ हम लोग ग्रुप में बैठे हैं तो हम लोग बात करते थे तो हम जोक्स भी ट्रांसलेट करके उसको बताते थे सो दैट ही कुड टेक हिज टाइम टू अंडरस्टैंड. तो ऐसे इट्स नॉट एज टॉक्सिक. मेरे डिपार्टमेंट में तो नहीं था, बट आई वुड नॉट से कि ऐसा ट्रू नहीं है. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में तो रहता है. इट्स नॉट ईजी। It's not easy, yeah, it's not easy, but it's not like they make it a help for the candidate who's joining from outside. Because obviously, if he's joining BHU from an outside, वो मतलब all India seat, he's got a good rank, he's got a credit in his name. In fact, उल्टा भी होता है. Pediatrics में बहुत बार internal candidates को बहुत penalize किया जाता है कि तुम्हें तो ऐसे ही मिल गई है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम लोग इनसे देखो ऐसे करके. I had a lot of batchmates who would say कि भाई प्रोफेसर्स आते हैं और बहुत डांटते हैं और मतलब कोई इज्जत ही नहीं है. दे विल लाइक कि दे आर लाइक कि तुम लोग तो फ्री में पा गए हो, तुम लोग को तो कोई कदर नहीं है, तुम लोग ना काम करते हो. इस टाइप से रहता था. कभी आपने खाई है बहुत घनी डांट? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बताओ, ज़्यादा, कोई किस्सा बताओ बहुत हमें। बार. तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता था फर्स्ट ईयर में, जैसे कभी कभी होता है ना कि मुझे लगता है वो कंडीशनिंग होती है ऐसी कि सीनियर्स कभी कभी ठान लेते हैं कि हाँ डांटना है, इसको पकड़ के टारगेट कर लेते हैं कभी. तो फाइल वर्क है तो फाइल में कुछ भी ऐसे कोई गलती निकलेगी तो बहुत कस के डांट पड़ती थी. या कोई गलती जो मतलब किसी और की, अगर जैसे कि ना हमारे डिपार्टमेंट में बॉयज़ के साथ थोड़ा सा उन लोग की ब्रदरहुड ज़्यादा थी, और लड़की के साथ ये होता था कि हाँ मतलब तुमसे तो गलती नहीं होनी चाहिए करके. तो थोड़ा बहुत रहता था. जैसे प्रोफेसर्स वर रियली नाइस, प्रोफेसर्स वर नॉट टॉलरेंट टू एनी डिस्क्रिमिनेशन. वो लोग कभी टॉलरेट नहीं करते थे, चाहे पेशेंट्स की तरफ से या सीनियर्स से. बट सीनियर्स में फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी होता था ऐसा. एक बार तो बहुत गंदी डांट पड़ी थी, फ़ोन पे पड़ी थी. फिर उसके बाद काफ़ी बुरा लगा था थोड़ी देर तक. फिर उसके बाद फिर जाके ड्यूटी पे हैड टू वर्क, हैड टू स्टार्ट. तो कुछ काम को लेके ही था, याद भी नहीं है, बट आई हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद दैट सीनियर नाउ. सो सो वही वो इकलौते फीमेल आप ही थे? मैं थी. जो मेरी साथ में जो मेरी फ्रेंड जो कॉलीग थी, वो शी वॉज फ्रॉम नेपाल. सो शी जॉइंड एंड देन क्या हुआ कि शी वॉज हैविंग अ वेडिंग. एंड जो फॉरेन सीट्स होती हैं तो दे आर यूजली VIP पीपल फ्रॉम देयर ओन कंट्री. सो मतलब दे डू द रेजिडेंसी. जैसे मुझे याद है सेकेंड ईयर में शी वॉज नॉट हियर बिकॉज शी हैड मैरिज या लीव्स वगैरह. तो प्रोफेसर्स वर लिटिल वो. तो आई रिमेंबर वर्किंग राउंड द क्लॉक, लाइक वी हैड टू शेयर द ड्यूटीज एक्सेट्रा. आई वुड नॉट से कि हाँ मतलब ऐसा होता है हर किसी के साथ, बट हाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज्ड टू बी द वन ओनली How did फीमेल. you manage being a single, मतलब basically इकलौती female amongst all the male counterparts? It wasn't any different from being in a department where there were girls. और उसके बाद क्या हुआ कि juniors में like once somebody has joined the department as a female, तो उसके बाद औरों को भी ना चांस मिल जाती है. आई थिंक प्रॉब्ली उसके पहले फीमेल्स ने जिसने ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज दे वुड लर्न अबाउट द डिपार्टमेंट कि हाँ लड़कियाँ ही नहीं है, तो वो ज्वाइन ही नहीं करती थी. मेरे बाद आई हैड वन जूनियर एंड देन उसके सुपर जूनियर बैच में वी हैड 3 or 4 गर्ल्स. तो बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड तो वी हैड अ टेबल फुल ऑफ फीमेल्स ऑलरेडी. तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा टफ था, वॉशरूम्स वगैरह कॉमन होते थे, बट उसमें भी होता था कि प्रोफेसर्स वुड बी लाइक कि हाँ लड़कियाँ मतलब तुमको ड्यूटी करनी है कि नाइट ड्यूटी. बट वी वुड वांट टू डू द नाइट ड्यूटी बिकॉज वाई वुड वी बी लेफ्ट आउट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. तो वी वुड डू इट. बाद में धीरे धीरे इवेंचुअली, और सीनियर्स भी ना शुरू का जो फेज़ होता है ना 3 months 4 months 6 months, थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट फेज होता है. बट देन इवेंचुअली सीनियर्स भी दे वर नाइस. लाइक आई यूज टू फील रियली पैम्पर्ड बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड. मुझे तो ऐसा हो गया था कि आई यूज टू टॉक अ लॉट और डिपार्टमेंट में, एंड प्रोफेसर्स वुड बी लाइक कि क्लास चल रही है एंड इफ़ आई एम नॉट स्पीकिंग अप, इफ़ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, तो प्रोफेसर्स बोलेंगे कि क्या हुआ आज दीपांजलि नहीं आई, कि आवाज़ नहीं आ रही है. तो दे वर वेरी नाइस विद अस, तो इसलिए इट गॉट ईजी फॉर अस.
Normally, what kind of cases would you see in the maximum number in your training days? लाइक हर तरह के केसेस, बहुत कॉमन केसेस तो देखते थे. BHU इज़ अ टर्शरी सेंटर एंड इट केटर्स टू द एंटायर नॉर्थ ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट द NCR रीजन जहाँ पे एम्स है. तो वहाँ पे जो भी केसेस आते हैं ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं और वो रेफर्ड फ्रॉम द स्टेट कॉलेजेस होते हैं. तो अगर मेनली एक इन्फेक्शियस केस भी आ रहा है, निमोनियाज आ रहे हैं, तो वो नेक्रोटाइजिंग निमोनिया आएगा, या फिर TB के केसेस आएंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होते थे. ILDs, वी हैड अ स्लीप लैब, लेवल 1 पॉलीसोम्नोग्राफी, सारे मतलब ILD के केसेस, बहुत सारे रेयर केसेस होते थे. एंड देयर वाज अ वेरी गुड कल्चर ऑफ रिपोर्टिंग केसेस, पब्लिकेशन. सो बाय द टाइम वी ग्रेजुएटेड हमारे पास ऑलरेडी 10-11 हम हमारे नाम पे पब्लिकेशंस, बिकॉज सीनियर्स भी और सब लोग हम लोग साथ में करते थे. तो लाइक वी हैव अ कपल ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन आवर नेम, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 ही होंगे शायद, या 100 से भी कम है वो सब केसेस. तो वी कुड सी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस एज वेल. और दिस इज ट्रू फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स इन BHU. वहाँ पे इफ़ यू आर ट्रेनिंग इन BHU, रेस्ट अश्योर्ड दैट यू विल सी द मिरियड ऑफ केसेस, कॉमनेस्ट से रेयरेस्ट. तो केसेस तो बहुत सारे होते थे अच्छे अच्छे. कभी आपको लगा कि दैट व्हाइल यू टुक दिस ब्रांच तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है जनरल मेडिसिन से, या इज इट अ टोटली डिफरेंट ब्रांच फ्रॉम जनरल मेडिसिन? इसका आंसर एक्चुअली ये है कि if you are a respiratory physician, none of your cases will be an isolated respiratory. Like most of your cases will have an overlap with the systemic cause, और कुछ नहीं तो comorbidity रहती है. So as a respiratory physician, you have to know the general medicine part of things. But India में क्या है कि MD respiratory medicine जब होता है तो you don't get as much an exposure of general medicine per se, कि because general medicine में जो residents है they are rotated across different ये departments, super specialties, cardio etc. which respiratory medicine students are not. But then having said that, ये सही नहीं है कि यू जस्ट फील कि हम बस रेस्पिरेटरी मेडिसिन करके निकलेंगे एंड वी विल बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड. व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू द मार्केट, यू हैव टू नो योर स्टफ एंड यू हैव टू नो कि वो नो रूट कॉज क्या है. तो वो रूट कॉज कभी आपका रेस्पिरेटरी हमेशा रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो रेस्पिरेटरी फिजिशियंस को दे हैव टू नो द मेडिसिन पार्ट ऑफ स्टफ, एंड वी वर एनकरेज टू रीड लाइक पार्ट्स फ्रॉम हैरिसन. वी हैड टू गेट थरो विद हैरिसन के पार्ट्स एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द बाइबल ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, दैट्स फिशमैन. तो हम तो दोनों पढ़ते थे. एंड इवेंचुअली इवन इफ़ यू कंसिडर कि बाद में आपको DM भी करना है, तो यू कुड गो फॉर कार्डियोलॉजी, DM कार्डियो एज वेल. तो उसमें भी आपको मेडिसिन तो ज़रूरत पड़ेगी. तो ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन के केसेस ओवरलैप नहीं करते हैं, बट आपके अगर कोई रेस्पिरेटरी केस है देन यू विल ओनली बी मैनेजिंग. ऐसा नहीं है कि कोई केस ले लेगा, जो यूजुअली लोगों के वो रहते हैं ना परसेप्शन की मेडिसिन वाले केसेस आपके पास नहीं आते हैं ऐसे करके. इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट वेरी ट्रू. मार्केट में इट्स वेरी डिफरेंट सिस्टम. So now is it an end branch or doing a DM is a compulsion? इट्स नॉट अ कंपल्शन, इट्स एन एंड ब्रांच इफ़ यू वांटेड टू बी. एंड देन ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ग्रेजुएट करके आ रहे हैं. अगर आप स्टेट कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं, आप कहीं ऐसे जगह से कर रहे हैं जहाँ पे यू कुडंट गेट अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आपकी ट्रेनिंग में गैप्स हैं, देन यू कुड गो फॉर DM पल्मो. और ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आर यू एमिंग एट. इफ़ यू एमिंग टू वर्क इन अ मेट्रोपोलिस और अ Tier 1 सिटी, डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे, पर लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन बहुत है वहाँ पे. तो इफ़ यू आर अ MD graduate and you've not done anything else alongside that, you will have a tough time finding a job. But it is not specific to respiratory medicine. कोई भी ब्रांच में अगर आप जाते हो, even if you are an MD medicine and you're not a DM, you will have a tough time finding a job because वहाँ पे competition ज़्यादा है. Tier 2, Tier 3 में ऐसा नहीं है. So go for any fellowship और DM. अगर आपको वो गैप्स हैं जो रेजिडेंसी में आपको फुलफिल करने हैं, या यू नॉट कॉन्फिडेंट, या फिर यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग, अकेडमिक्स में आपको जाने का मन है, then go for it. Like I didn't go for it because I felt my training was very wholesome, well-rounded, and I could get a lot of exposure from a lot of subspecialties of the this branch, जो कि बहुत सारे peers को state में नहीं मिलती थी हमारे time. तो I didn't feel the need to go for it, and give another 3 years doing the same thing I have done in BHU already. तो अभी इस ब्रांच में कौन कौन सी DMs अप्रूव हो गई हैं? DM क्रिटिकल केयर, DM कार्डियोलॉजी. आप नीट SS से करेंगे तो DM कार्डियो के लिए एलिजिबल हैं आप. पल्मो है ही, क्रिटिकल केयर बता दिया, और आई थिंक दीज आर द 3. That's it. हाँ, that's it. And you can't enter into the other branches of medicine now. No, not other branches of medicine. Why is that?
I'm not sure, like because probably because the core specialty, because respiratory medicine को अलग से ही उन्होंने segment में डाला हुआ है जहाँ पे core branch respiratory medicine है. NEET SS में you can opt for cardio, but not for endo or etc. Not sure why that is. आउट ऑफ द डीएम ब्रांचेस जो आपने मुझे बताई स्पेशलिटीज में, हाउ वुड यू रेट देम इफ यू हैव टू रेट फ्रॉम 1 to 5? आई वुड से लाइक लिस्ट करना है आपको, आप टॉप किसको रखेंगे उसमें? DM Pulmo. If you're a pulmonologist, like अगर आप पल्मो में घुसे हैं तो I suppose I'm expecting that you want to be a pulmonologist. Then TM Pulmo, and it's one of the toughest SS seats to crack because competition बहुत रहता है, because medicine and pediatrics people are also eligible to apply for DM Pulmo. So and seats बहुत कम है, I think 200-250 और इन्हीं सेट में शायद 15-20 बस, कंपेयर टू कार्डियो जहाँ पे आपको कंपेरेटिवली 5,000-6,000 पे भी आपको कार्डियो मिल जाता है. एंड क्रिटिकल केयर इज ऑल्सो कि क्रिटिकल केयर में क्या है कि द कॉम्पिटिशन इज अ लिटिल लेस बिकॉज नॉट मैनी पीपल अप्लाई फॉर इट बिकॉज ऑफ द लाइफ दैट इट एंटेल्स इवेंचुअली. सो इन दैट मैनर तो DM पल्मो सबसे कॉम्पिटिटिव एंड सबसे टफेस्ट है. ट्रेनिंग पर्पज से मुझे बताइए कि लेट्स सपोज आपने रेस्पिरेटरी मेडिसिन करी, यू गो टू डीएम इन पल्मो आफ्टर डूइंग जनरल मेडिसिन, बिकॉज जनरल मेडिसिन में आपने सब कुछ किया है, अब आप एक कोर में स्पेशलाइज कर रहे हो. रेस्पिरेटरी मेडिसिन में ऑलरेडी आप एक कोर में स्पेशलाइज कर चुके हो, तो डीएम में आप जाके क्या ट्रेनिंग में आपके चेंजेस आते हैं? देखिए DM में क्या होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बहुत सारे इंटरवेंशन, जैसे मैंने बोला कि MD में हर जगह आपको सारे एक्सपोजर नहीं मिल रहे होते हैं. स्लीप मेडिसिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन विच इज़ नॉट लाइक स्टूडेंट्स डोंट गेट एन एक्सपोजर टू दैट. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अभी इंडिया में इतना इवॉल्व नहीं है. कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पे ये एक्सपोजर रहता है. तो आप DM में स्लीप मेडिसिन जो सब स्पेशलिटीज़ है ना उस पर बहुत क्लियर फोकस रहता है. इंटरवेंशंस में इट्स नॉट जस्ट ब्रोंकोस्कोपी, थोरैकोस्कोपी भी रहती है, और द ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड प्रोसीजर्स होते हैं बहुत सारे, स्टेंटिंग, क्रायो एक्सेट्रा, जो कि आपको एक्सपोजर मिलता है जब आप DM करने जाते हैं, जो कि बहुत जगह MD में नहीं मिलता है. उसके साथ जो केसेस के जो टाइप्स हैं आप देख रहे हैं, जो आप रिसर्च एक्सपोजर आपको मिल रहा है, जो आपको टीचिंग मिल रही है, एकेडमिक जो इन्हांसमेंट हो रहा है आपका, तो दैट इज़ वाई आई सपोज कि लोग जाते हैं. और उसके साथ वही बात है कि एवरीबडी वांट्स टू सिक्योर देयर फ्यूचर. MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन, अभी वी आर लाइक हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन रिगार्डिंग from the NMC etc. So people just want to be sure that we'll still be relevant 10 years down the line. अब आप बताइए मुझे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यंग डॉक्टर्स दे आर प्लानिंग टू चूज रेस्पिरेटरी मेडिसिन एज अ करियर, सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट इज बेस्ट suited for this branch? I would say if you love physiology, you should go ahead with it. If you like, you know, you have that knack for diagnostics, कि आपको diagnosis वगैरह complex cases करना पसंद है, should go for it. If you don't mind working on emergencies, जो आपको एक होता है ना जो thrill मिलता है, if you like that part of the medicine वाला thing, कि जो thrill है, उसके लिए आप ले सकते हो. And I think, and हाँ, अगर आपको specialized रहना है तो आप respiratory medicine should choose. And who shouldn't? People who want a 9 to 5 kind of a job, या laid back, which is not bad, you just have to know your why. So अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा रिलैक्स चाहिए, या आपको बहुत ज़्यादा वो जो लाइबिलिटी होती है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, अगर आपको थोड़ा लेड बैक जॉब करनी है, you should not go for it. If you wanted general medicine and you didn't get it, I would say that should not be the reason for you to take respiratory medicine. Then probably should not take respiratory medicine. एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, उनको लगता है कि दोनों सेम है. बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, मतलब जो टॉप डाउट रहता है बच्चों का. आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अप्रोचिंग मी कि इफ दे नॉट गेटिंग जनरल मेडिसिन शुड दे टेक रेस्पिरेटरी मेडिसिन पर्सनली. एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल सेइंग कि मुझे रेस्पिरेटरी मेडिसिन मैंने इसलिए ली थी बिकॉज मुझे मेडिसिन चाहिए थी और मुझे नहीं मिली. आई ऑलवेज से लाइक ऑप्टिंग अ ब्रांच इज लाइक marrying somebody, okay, getting a spouse. So would it be nice for you that, would you like to say ki haan, I am married to a person but that wasn't my first choice, that person was not my first choice? No, right? Because that would mean that you didn't love the person, you just married him for the sake of marrying. Should not do it, because if you're starting a branch from regret, you will neither be a generalist and you will not be a specialist as well, and then you will be hanging somewhere in between. Plus general medicine and respiratory medicine are very different from the training that give you and the future that you will have eventually.
तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में बहुत सारे बच्चे हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू गो फॉर रेस्पिरेटरी मेडिसिन जस्ट बिकॉज कि आपको जनरल मेडिसिन नहीं मिली एंड आपको लग रहा है कि वहाँ जाके आपको वैसे ही सेम, इट्स नॉट मेडिसिन लाइट बेसिकली, यू हैव टू नो मेडिसिन, दे थिंक दैट मेडिसिन अरे अब तो ब्रांच हो गई, एंड देन दे गेट बोर्ड कि हमें तो बस यही केसेस मिल रहे हैं, हमें तो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है. तो वो जो होता है ना मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी. सो आई ऑलवेज से कि जनरल मेडिसिन इज लाइक अ वेरी ब्रॉड स्पेशलिटी. So if you are attracted to the breadth of the specialty, go for similar branches like geriatrics, pediatrics, those branches जहाँ पे आपको जो cohort of patient है उसकी age change हो गई होगी, but I would say फिर भी you would get what you're expecting. Respiratory medicine is not at all like that. तो आपको patients भी देखने पड़ेंगे और आपको पसंद भी नहीं आएगी फिर वो चीज़, या तो फिर आप clarity रख के जाइए उस चीज़ के लिए. That's a very brutally honest answer. Yeah, I feel so. मतलब मुझे, because I've had so many people, I've heard a lot of pulmonologists also say this, that they didn't get medicine, so they opted for respiratory medicine, and they're happy with it, which is nice. But you cannot expect a person who has no idea what they're going for and then feel कि हाँ आप उनको ये advice हम नहीं दे सकते ना, because we don't want them to be frustrated when they've taken the branch and you have to carry it for the next 40 years of your life, and if you don't love it, you're not going to do well in it. Very true. Yeah. Career trajectory क्या रहती है? Like after doing your MD, all right, what's the career trajectory like? Career trajectory is आप MD करके निकलते हैं, so usually you either go for SRship or DM or some fellowship of some sort. If you feel, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि MD करने के बाद योर जैसे आई वुड नॉट से कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. If you have a very clear idea, I've had a lot of juniors जो कि they had a very clear idea that they wanted to set up their own hospital and practice. तो वो उस हिसाब से ही तैयारी करके they passed out and they opened their own clinics. But usually I would say कि जो confidence आता है ना वो SRship में आता है when you are leading the rounds, when you are leading the diagnosis on your own ये merit उस वक्त. तो आई वुड से SRship कर लेनी चाहिए. SRship करिए, उसके बाद when you're done with 1 or 2 years or 3 years SRship, you could either join a government hospital if you're into academics, teaching, etc. You could join a private hospital, privately owned, or a corporate hospital for that matter. And if you don't want to do all these things, you could try for opportunities abroad. और आपको DM करना है तो आप DM कर सकते हो. तो ये रहती है ट्रैजेक्टरी फॉर द टाइम बीइंग. How soon should a young medico start, young pulmonologist should start their own private practice? The sooner the better, honestly. But it also depends कि how confident are you from your training. If you're confident from your training कि हाँ you can handle cases on your own independently, which a lot of students are not able to do. So I would say कि take your time, gain that confidence, get the experience that you need, and then start the practice. If you're very confident कि हाँ मतलब you've had a very good training from a very good institute, start your practice as soon as you can. You have the means to it. Go for it. Between a corporate hospital and a government setup or your own private practice, क्या comparison रखेंगे आप? Government में आप कर रहे हैं तो you'll usually join at the post of an AP, freshly passed out from SRship. तो AP में it's the same कि आप you have a team of doctors to train, to teach, and you attend the OPDs. But you've got आपकी जो life होती है, I would say is comparatively, because you're not working around the clock in the sense that you have a team of doctors who are going to be attending your emergencies or duties and you're teaching them. तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है, बट होती है. कॉर्पोरेट में क्या है कि पेशेंट्स आर गेटिंग एडमिटेड इन योर नेम एंड यू आर द पर्सन होल सोल गार्जियन ऑफ द पेशेंट राउंड द क्लॉक until the patient leaves the hospital, and eventually after that as well, follow-ups and OPDs. तो वहाँ पे you have to be very confident of the skill set you own. एंड उसके साथ साथ ना कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट में उतना हमें नहीं रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन आई थिंक प्राइवेट में या मार्केट में आप बाहर जब क्लिनिक खोल के बैठ रहे हो या कॉर्पोरेट में, यू हैव टू हैव द सॉफ्ट स्किल्स जो इवेंचुअली हम डेवलप करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में मेडिसिन में कुछ और डेवलप नहीं कर पाते लोग स्किल्स. Just soft skills like communication. Your communication has to be very strong, and communication in government hospital and private is very different, very very different. You can't speak badly to a patient in a private hospital, and you should not. पर गवर्नमेंट में क्या होता है, पेशेंट लोड इतना होता है कि हर कोई हर टाइम एक जैसा मेंटेशन में नहीं होता है, तो मूड्स वेरी करते हैं, डॉक्टर्स के भी पेशेंट्स के भी.
यहाँ पे VIP पेशेंट्स होते हैं कॉर्पोरेट में. So and you build a long term relationship with your patients whether or not they end up being your patients for long term or not. तो वो डिफ़र करता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है कॉर्पोरेट में गवर्नमेंट से. एंड देन नेगोशिएशन स्किल्स जो कि हम कॉर्पोरेट में जाके सीखते हैं डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स में काफ़ी पुअर होती हैं. और गवर्नमेंट में तो फिक्स स्लैब्स होते हैं. AP में प्रमोशन के साथ साथ देन इम्प्रूव होता रहता है. यू स्टे अब बिलासपुर में रहती है राइट? हाँ. आप उसे क्या कहेंगे, Tier 2, Tier 3? Tier 2. Tier 2. So what are the job opportunities there? Opportunities same, like we have a government college there, so वहाँ पे AP वगैरह की सीट, प्रोफेसर, academics. उसके साथ there are a lot of private hospitals, so they have vacancies for respiratory medicine. You can join as a consultant there. We have a corporate called Apollo, so opportunity वहाँ पे भी same consultant, associate consultant. So basically job opportunities कमी नहीं है इस फील्ड के अंदर. बिल्कुल भी कमी नहीं है. दिस इज़ वन ऑफ द अदर मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव, दैट पीपल से कि opt for general medicine. A lot of students ask me कि my parents are saying or my peers are saying that opt for general medicine, you will have a greater opportunity for jobs than respiratory medicine, which is very not so true. It's not true at all, in fact, because क्या होता है, जैसे my husband and I, both of us are pulmonologists. Even when we were getting married, we were told don't marry into the same branch because you guys will end up living दूर दूर, बिकॉज आप लोग को सेम जगह तो जॉब मिलेगी नहीं, कहीं इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. बट आई विल टेल यू व्हाट, बिकॉज वी वर इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन इज बिकॉज ऑफ दैट हम आज जहाँ काम कर रहे हैं हमें कभी अलग ही नहीं रहना पड़ा, बिकॉज हमें अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा थी जो कि हम जनरल मेडिसिन में होते तो नहीं होती. बिकॉज हॉस्पिटल्स में जनरल मेडिसिन यूजुअली वो क्या होता है ना कि इतने सारे बच्चे निकल रहे हैं, जनरल मेडिसिन के जितने बच्चे निकलते हैं उसके हाफ शायद रेस्पिरेटरी मेडिसिन में निकलते हैं. यूजुअली बैचेज आर स्मॉलर. जनरल मेडिसिन में 8-10 बच्चे होते हैं एक बैच में, यहाँ पे 5, 4, 3 ऐसे होते हैं. बट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. Tier 1 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स या डिमांड Tier 2, Tier 3 में. दे आर नॉट डॉक्टर्स इन Tier 1 एंड Tier 2 एंड Tier 3 प्लेसेस. एंड रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. छत्तीसगढ़ इज़ लाइक अ कोल बेल्ट कहीं, और NCR में पॉल्यूशन. इनफैक्ट कहीं भी आप जाओगे तो डिमांड बहुत है बट उतने डॉक्टर्स ही नहीं है रेस्पिरेटरी मेडिसिन के. हाँ, अब देन अगेन graduating from MD in respiratory medicine does not guarantee that you will get a job, because you have to own, like you have to show them that you have the skills to get employed. You have to be employable. But हम दोनों respiratory medicine में थे, इसीलिए we could easily get a job, जो कि हमेशा general medicine होने के बाद same जगह भी नहीं मिलती. तो it has actually been a blessing for us. Yeah. ये बहुत infectious branch है. How do you deal with that part? Is it infectious in the sense कि respiratory TB, infections? yes, Yeah. yes. So, like I said, India is an endemic country for TB. Wherever you go, you will have an exposure. और आप medicine में नहीं भी हैं तो आपको TB से exposure हो चुका है. अब the reason why most people say that you get infected with TB if you join respiratory medicine is not true. In fact, respiratory physicians are one of those people who don't actually get infected with TB because every patient for them is a likely TB patient. तो हम क्या करते हैं ना, हम सीखते हैं वो मास्क हाइजीन, कफ हाइजीन, पेशेंट से डिस्टेंसिंग, जो कि अदर स्पेशलिटीज़ में नहीं होती हैं. दूसरी चीज़, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर रेजिडेंट्स टू गेट TB इन देयर रेजिडेंसी इज़ द पुअर न्यूट्रिशन, जो कि लड़कियों में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हम लोग थोड़ा सा वी आर वेरी वेट कॉन्शियस एंड एवरीथिंग. ऊपर से द हेक्टिक आवर्स, ड्यूटीज़, तो इसलिए लोग कहते हैं कि लड़की को तो TB हो जाएगी, बट बिल्कुल भी ऐसा ट्रू नहीं है. आई हैव सीन माई कॉलीग्स फ्रॉम रेडियोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी getting tuberculosis, and not just regular one. I had a senior from Ophthal, she had developed MDR TB because of the poor nutrition. अब उनको भी एक्सपोजर है, वो लोग फंडोस्कोपीज करते हैं, बहुत क्लोज आना पड़ता है पेशेंट से. रेडियोलॉजी में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. मेडिसिन में हेक्टिक ड्यूटीज़, गायनैक्स हेक्टिक ड्यूटीज़. सो यू एंड अप योर इम्यूनिटी जस्ट टेक्स अ टोल, एंड देन दैट इज़ द रीज़न यू डेवलप द इन्फेक्शन विच इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू. बट वो इम्यूनिटी अच्छी होती है तो आपको एज इंडियंस हर कोई प्रेजेंट नहीं करता है. सो रेस्पिरेटरी मेडिसिन डजंट पुट यू एट अ इंक्रीज रिस्क ऑफ इट. इनफैक्ट यू लर्न हाउ टू लाइक व्हाट थिंग्स टू अवॉइड. मैं जब रेस्पिरेटरी मेडिसिन ज्वाइन करी थी, जिस दिन मैं रिपोर्टिंग के लिए गई थी ऑफिस में, सो आई हैड एन SR, मेरे सीनियर थे. सो ही सेड, ओ कांग्रेचुलेशन, यू हैव जॉइन द डिपार्टमेंट, अब रोज़ से 3 अंडे खाना स्टार्ट कर दो. आई वॉज वेरी परप्लेक्स ही क्यों. एंड हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन रेजिडेंट्स वर द ओनली रेजिडेंट्स हु गेन्ड वेट इन फर्स्ट ईयर. All of others
वर लूजिंग वेट बिकॉज क्योंकि इतनी हेक्टिक ड्यूटीज होती हैं. बट हमारे टाइम क्या था कि वी वर वेल फेड. वी वर ऑलवेज टोल्ड कि नाश्ता छोड़ के नहीं आना है. फर्स्ट डे प्रोफेसर ने कहा था कि आप लोग नाश्ता छोड़ के नहीं आएंगे, नाश्ता करके आना है. टिफ़िन आते रहते थे. हमारा जो रेजिडेंट रूम था टिफ़िन से भरा रहता था और किसी का भी टिफ़िन आ रहा है सब बांट के खा ले रहे हैं. कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई रेफरेंस कराने जा रहा है तो खा ले रहे हैं. बिकॉज वी वर ऑलवेज अवेयर ऑफ दैट फैक्ट कि खाली पेट नहीं रहना है. न्यूट्रिशन शुड बी एडिक्वेट. So it is not true कि respiratory medicine puts you at increased risk. It's our own immunity that we need to take care of. फाइनेंशियली बात करते हैं. What do you think is the earning potential of this branch as a young pulmonologist yourself? Like immediately after doing MD, 10 years down the line and 20 years down the line. So immediately after MD आप SRship करोगे अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो. It depends कि आप गवर्नमेंट में हो कि प्राइवेट में हो, कॉर्पोरेट में हो, टीयर 1 में हो, टीयर 2 में हो या उससे रूरल में हो और आप या आपकी क्लिनिक है खुद से. तो इमीडिएटली अगर आप निकल रहे हो तो कहीं भी SRship करोगे तो वही है 90 to 1.2 आपको फ्रेशली मिलता है. उसके बाद इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज पर द गवर्नमेंट बार जो रहता है उसके हिसाब से सैलरी बैंड्स. अगर आप प्राइवेट में हो, मैंने क्या किया था, मैंने SRship जब की थी तो मैंने 1 साल SRship BHU से की थी. उसके बाद 1 साल मैंने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से किया था और मैंने 3rd ईयर आई पर्पजली वर्कड इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अपोलो. तो 3rd ईयर ऑफ माई SRship आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग 2 lakhs विच वॉज अ वेरी ऐसा मतलब वो रेगुलर सैलरी नहीं है SRs को मिलने के लिए. कहने का मतलब बस इतना है कि आपको डिपेंड करता है आप कहाँ काम कर रहे हो. अब अगर आप 5 years डाउन द लाइन हो, अब यू आर अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंसल्टेंट, you can easily negotiate for 3.5 to 4 in a tier 2 place. Tier 1 में it's usually less. Cardiologist या DM candidates को भी कम मिलता है वहाँ पे 2-2.5 ऐसे शायद. And then if you have your own practice तो वो तो फिर it just escalates exponentially amount of the time you give to your practice and your patients. That's nice. Yeah. I'm learning a lot about being a doctor in a tier 2 city today. Yeah. Tier 2 में it's like everybody knows everybody. But और क्या होता है कि वहाँ पे मतलब मैं वही बता रही हूँ कि हमने मार्केट में निकल के बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो हमें भी नहीं पता थी. बिकॉज माई डैड डिडंट हैव हिज ओन प्रैक्टिस. ही वॉज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड वहाँ पे उतना कुछ नेगोशिएशन होता है. यू जॉइन, यू गिव एग्जाम्स, यू क्लियर इट एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ. मार्केट में आने पे क्या होता है कि नेगोशिएशन यू हैव टू learn. We have been underpaid a lot of times, and then we learned what skills we bring to the table, how to talk with the recruiting authority, and then negotiate according to that. तो eventually now we've realized कि हाँ मतलब हम ये चीज़ें करके बैठे हैं तो आपको हम ये कर सकते हैं जो कि डॉक्टर्स को सीखनी चाहिए. बिकॉज डॉक्टर्स are made to feel that they are just very replaceable. They are not. If you show the recruiting authority that you're not replaceable, you bring something to the table. और उसके लिए आपकी ट्रेनिंग एंड यू हैव टू हैव समथिंग अंडर योर हुड जो आपको करना ही पड़ेगा फिर उसके लिए. तो ऐसी कोई सीक्रेट नेगोशिएशन टिप जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? नेगोशिएशन टिप ऐसी कुछ नहीं है बट इट्स जस्ट कि दे विल ऑलवेज वो होता है ना बिकॉज HR का काम है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं. तो आई वुड नॉट से कोई ऐसी टिप है बट ये है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू हैव अ गुड रेज्यूमे प्रॉब्ली एंड देन द वे यू स्पीक matters. You have to be confident of what you're bringing to the table. And then जिससे बहुत सारी चीज़ें होती है कि हॉस्पिटल में ये पेशेंट लोड है, ये है, हम ये कर सकते हैं. उस हिसाब से आई थिंक नो स्पेशल टिप. You have studied in, you have trained in the NHS as well. Yeah. So आपको क्या डिफरेंस लगा इंडिया और UK की ट्रेनिंग में? वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट. NHS इज लाइक पूरा ऊनो रिवर्स है इंडिया के कंपैरिजन में. इंडियन हेल्थ केयर इज़ अ डॉक्टर फर्स्ट हेल्थ केयर. वहाँ पे क्या है, इट्स अ पेशेंट फर्स्ट हेल्थ केयर. मतलब एवरीथिंग इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक सिस्टम क्योंकि वहाँ सिस्टम सब चीज़ों का बना हुआ है. इट्स वेरी सिस्टमैटिक. इंडिया में क्या है कि उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, ट्रेनिंग सेटअप उतना स्टैंडर्डाइज नहीं है. वहाँ पे एवरीथिंग इज़ सब चीज़ों के प्रोटोकॉल है. जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर कोई रिपोर्ट आई है और मैं इस शिफ्ट में मैं कंसल्टिंग डॉक्टर हूँ तो जो मेरा डिसीजन होगा मेडिकल वो जो मैं मेरे बाद जो मेरा कॉलीग आएगा नेक्स्ट शिफ्ट में 7.35 से 34 अगर है PH तो जो मेनली जो डिसीजन चेंज होगा वो उनका भी वही रहेगा जो मेरा है. बट इंडिया में क्या है कि अगर एक रिपोर्ट आई है तो एवरी फिजिशियन हैज़ देयर ओन थिंक अबाउट क्या आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं है उतना. थोड़ा सा अब इसको आप ऑटोनॉमी भी बोल सकते हो कि यहाँ थोड़ी ऑटोनॉमी ज़्यादा है. वहाँ पे रूल्स और प्रोटोकॉल से आप बंधे रहते हैं तो थोड़े कुछ चीज़ों में लिमिटेड भी रहते हैं.
फिर रिसोर्सेज वहाँ पे, एंड NHS इज़ लाइक सारे पेशेंट्स के लिए फ्री है सब कुछ, तो उससे भी पेशेंट्स का एटीट्यूड भी बहुत चेंज होता है। यहाँ क्या है कि सिंस पेशेंट्स आर पेइंग फॉर ऑल द थिंग्स, अब यहाँ पे थोड़ा इंश्योरेंस वगैरह आ गया है, लेकिन यूजुअली सबके पास नहीं होता है, तो पेशेंट्स आर पेइंग फॉर स्टफ फ्रॉम देयर पॉकेट, सो दे आर वेरी एप्रीहेंसिव बिकॉज दे वांट टू नो वेयर देयर मनी इज़ गोइंग, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स जो इंडिया में हमें नहीं सिखाई जाती है, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स पेड अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। फिर थर्डली, लाइक जब वहाँ पेशेंट से बात करने जा रहे हैं, यू ट्रीट देम विद अटमोस्ट respect in the manner that you address them with their name, you talk to them very like in a very different manner, and patients are also well aware of what you're talking to them about. जैसे यहाँ पे अगर आपको बोलना है कि consolidation है lungs में, so you would have to think about creative ways to make them understand stuff. फिर वहाँ नहीं है ऐसा, you just tell them that you have a consolidation in your lungs which means you have infection, that is all. फिर patients are really nice there. I had one of the best patients when I was working in the NHS. And documentation is also paid a lot of importance in NHS, जो कि इंडिया में हमें सिखाया नहीं जाता है, and we don't pay attention to. So is the UK pathway easy? UK pathway, there are a lot of pathways. The most common is the PLAB pathway. UK pathway is not easy. Any pathway is not easy. But PLAB pathway, एक PLAB pathway है. MD के बाद अगर आप जा रहे हैं तो वो एक different pathway है. It's called an MTI pathway और MRCP pathway भी है. If you want to be a consultant, like you worked here for 8-9 years, you have adequate experience under your hat. So you want to work as a consultant in a different country like UK. Then उसका different path है. Pathways different है, they are not easy, but आपको उस हिसाब से adjust करना पड़ता है and you have to go about it accordingly. तो आप कैसे गए थे? मैं MTI pathway के लिए गई थी, because MTI pathway is like you have to apply at a post of a registrar, और यहाँ पे जो हम SR बोलते हैं, and वो interviews देते हैं. You don't have to have any exam under your hood, because if your training is in competence with any respiratory trainee from the NHS, they assess you that way. अगर है आपके पास, they are happy to provide you with a license for 2 years, and then and a visa, working visa for 2 years. You go there, you work. If you like the system, you move ahead, or if you want to come back, you can come back. So आप वापस क्यों आए? बहुत सारे रीजंस है उसके. आई वुड से दैट जब मैं गई भी थी ना, तो मेरा रीज़न ये नहीं था कि दैट आई वांटेड टू मूव टू UK फॉर अ लॉन्ग टर्म. आई पर्सनली आई एम अ वेरी एक्सपेरिमेंटल पर्सन. मतलब मैं, जैसे कि माई हस्बैंड एंड आई, बोथ ऑफ अस, वी हैव लिव्ड इन 4 different places. We had lived in 4 different places after our MD, because we were still exploring what we wanted to do. So NHS was a part of that. We had also given the exam for Dubai. It's called DHA. It's a specialist exam. हमने वो भी दिया था, and the only reason that we went for it was because we had gone for a trip to UAE, Dubai, and we liked the place, and we thought चलो यहाँ काम कर सकते हैं, and then we got back and we gave the exam, we cleared it. And then meanwhile we were also very like कि चलो NHS का experiment करते हैं, देखते हैं, like we were looking for pathways, and MTI is a pathway which is not very well known even now. और उस वक्त तो there were not many resources उस वक्त भी. तो वी वर लुकिंग फॉर रूट्स कि हम ट्राई कर सकते हैं. MRCP वॉज ऑन द लाइन. वी हैड बुक्ड फॉर द स्टेज 1 एग्जाम, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. 2 to 3 years लग जाते हैं. तो MTI पाथवे में भी 1 साल लग जाता है, बट ताकि हमें एग्ज़ाम की मैंडेट नहीं थी. एंड वी हैड अ गुड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, बुक्स लिखी थी. तो उस चक्कर में क्या हुआ कि प्रॉब्ली दैट इज़ वॉट आई थिंक दैट गॉट अस शॉर्ट लिस्टेड, एंड वी अप्रोच अ लॉट ऑफ पीपल. जैसे लिंक्डइन से, NHS की वेबसाइट्स तो मतलब रेगुलरली रोज़ सुबह शाम अलर्ट्स वगैरह सब कुछ करते करते वी गॉट टू नो कि MTI पाथवे है ऐसा जिससे हम जा सकते हैं. एंड देन वी गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़. तो इंटरव्यू, फिर वहाँ से इंटरव्यू देना सीखा, क्योंकि इंडिया में तो वो इंटरव्यू नहीं देता. तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. वी कुड नॉट डू इवन दैट. हमें 1 मिनट में इंट्रोड्यूस करना था अपने आप को, हमें वो ही नहीं पता था हमने क्या क्या किया है, वो भी नहीं, मतलब वो भी सीखा हमने वहाँ पे करना, इंटरव्यू देना. तो सीखते 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 हमें पता लगा कि हाँ ऐसे करके जा सकते हैं. तो हम फिर वहाँ गए. तो MTI pathway is like you don't need MRCP to go right away. You get sponsored with a visa. You have to look for the jobs yourself. वो उसका अलग सिस्टम है कि आपको जॉब्स कैसे खोजनी है. यू हैव टू अप्लाई टू एप्लीकेशन. इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी टफ, बिकॉज आपके पास MRCP भी नहीं है. यू कम्पीटिंग विद कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, एंड आपकी रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए दैट फॉर देम टू शॉर्ट लिस्ट यू. तो इस मतलब, बट इट्स वन ऑफ द पाथवे वेयर यू डोंट नीड टू गो फॉर एन एग्जाम राइट अवे. तो आपको जॉब आसानी से मिल गई थी वहाँ पे?
नहीं, आसानी से तो नहीं मिली थी, बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बट हाँ, लाइक क्या होता है शुरू-शुरू में एप्लीकेशन भरते-भरते ना यू बिकॉज़ फिलिंग एन एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो आप सीखते हो कि आप कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। आई हैड फिल्ड आउट 22 एप्लीकेशंस एंड देन इवेंचुअली आफ्टर 4-5 मंथ्स व्हेन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज़, एक साथ होने लगता है बिकॉज़ अब आप थोड़ा सीख चुके होते हो। तो आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर 7 इंटरव्यूज़। फिर उसमें से आई वाज लकी टू हैव गॉट like received offers from 4 places and I had the luxury to choose which one I wanted to join. सबको ऐसा नहीं होता है बट ये है कि हाँ easily तो नहीं बट फिर we were lucky कि मिल गई थी जॉब. अगर मैं जॉब सैलरी की बात करूं, सो कंपेयर टू इंडिया एंड NHS UK, व्हाट वाज द रेंज ऑफ डिफरेंस? रेंज वहाँ पे सैलरीज आर बेटर बट वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो वेरी हाई. या तो मेरे टाइम तो 2-3 साल पहले, और पर वहाँ पे क्या है कि एवरी ईयर बैंड्स थोड़े थोड़े चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर यू आर इन. तो मेरे टाइम आई वॉज वर्किंग एट अ सैलरी जो कि आज वहाँ पे एक IMT ग्रेजुएट या आप कहना चाहिए JR के लेवल की सैलरी है. बट उस वक्त भी, और जो फ्रेशली जैसे कि हमारी कंट्रीज मिडिल इनकम कंट्री से जो लोग ग्रेजुएट्स जाते हैं इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, तो दे आर पेड रिलेटिवली लेस बिकॉज यू नॉट गॉट एनी NHS एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो थोड़ा सैलरी कम रहती है बट इट्स स्टिल फाइन. मतलब अगर आप फैमिली, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप अकेले हैं तो इट्स एनफ फॉर यू. इफ़ यू हैव अ फैमिली देन यू हैव एडेड एक्सपेंसेस क्योंकि वहाँ लाइफ स्टाइल इज़ वेरी एक्सपेंसिव. I used to pay around 1,200 pounds for a 1 BHK apartment there. In a not so posh locality, it was a normal locality. जो थोड़ा कम में रहेगा, स्टूडियो में रहेगा तो 800-900 पे करेगा. आई वॉज लिविंग क्लोजर टू लंडन, 1 hour ट्रेन डिस्टेंस फ्रॉम लंडन. अगर आप थोड़ा रिमोट में जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लोअर, रेंट्स वगैरह लोअर है, तो वहाँ पे सैलरीज आप यू कैन सेव अ लिटिल मोर. एंड इफ़ यू आर इन मेजर प्लेसेस लाइक लंडन, मैनचेस्टर, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस आर अक्रॉस द रूफ. तो वहाँ पे और फिर आपको मतलब ये रहता है कि हैंड टू माउथ रहता है, फिर आपको जो आप कमा रहे हो फिर वही आप खर्च कर रहे हो, ऐसे रहता है. मतलब वहाँ भी अगर सेटल होना हो, लेट्स सपोज विद अ गुड सैलरी, गुड सेविंग, तो उसमें 10 साल लग जाते हैं मतलब. हाँ, इवेंचुअली बिकॉज कंसल्टेंट्स बाय द टाइम यू आर कंसल्टेंट तो योर सैलरीज आर गुड. इट्स अबव 100,000 pounds per year. But then you will also have a family, right? So you will have to have a big home. And वहाँ पे क्या है कि rent is very expensive. So people prefer to buy houses as soon as possible and pay the mortgage on that rather than being on rent. तो वो भी आपका रहेगा. And then you'll have to have a car because the weather is so extreme. तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बढ़ जाती है बाय द टाइम यू बिकम अ कंसल्टेंट. आई हैड अ लॉट ऑफ कॉलीग्स हु डिडंट वांट टू बी कंसल्टेंट्स एंड दे वर लाइक वहाँ पे एज मतलब दे वुड बी लाइक 50 years old and their kids would be 21-22 years old but they are happy to work at a resident. Yeah, because the kids are all moved out so they are getting the salary, they are happy with it. So they don't want the additional trouble and responsibilities of a consultant, so they didn't want him to प्रमोट नहीं होना या चाहते. प्रमोट नहीं होना चाहते थे. So basically, between US Assembly and UK, US and UK, US Assembly the salary is like extremely good. नाइस. UK is not that rewarding. या अब तो बहुत ज़्यादा और चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई हैं बिकॉज अब क्या है कि दे आर ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग पीपल लाइक द UK नेशनल्स फर्स्ट, जो कि पहले नहीं था, अभी 2 साल पहले तक नहीं था ये चीज़. उसके बाद दे आर ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग दैट यू हैव टू हैव अ NHS एक्सपीरियंस. तो फॉर पीपल लाइक अस जो कि बाहर से जा रहे हैं उनके पास तो नहीं होगा एक्सपीरियंस, तो इट ऑल्सो एड्स ऑन टू द डिफ़िकल्टी ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड. उसके साथ क्या है कि सैलरीज एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे बट अब US से कंपेरिजन में टाइमिंग्स, जैसे यहाँ पे क्या है कि यू वर्क 8 hours a day एंड बट वहाँ पे क्या है कि यू वर्किंग 80 hours a week, यहाँ 40 hours a week है. तो वो भी डिफरेंस है वहाँ पे, दे आर वर्किंग हार्डर एज वेल. यहाँ पे भी है US. US में. UK में इट्स 40 hours a week एंड लाइक ऑन एन एवरेज इट्स 40 hours a week. किसी किसी वीक में ज़्यादा हो सकता है तो कोई और वीक में कम हो जाएगा ऐसे. 40 hours is just 8 hours a day. Yeah, it then again compared to India, I wouldn't say it's easy because 8 घंटे में you're just running around. There are a lot of liabilities, documentations, ये सब बहुत होता है. तो it's not easy, but compared to USA, I would say कि ये तो advantage है वहाँ पे timing का. Saw that you really advocate for women in healthcare. Yeah. So आपको क्या लगता है अभी तक women को क्या challenges face करने होते हैं? Challenges, सबसे पहले तो there is still that casual misogyny, like थोड़ा सा यहाँ वहाँ के जो चीज़ें हैं जो कि हम assume कर लेते हैं because ठीक है चलता है, अरे don't be that strict. But somehow somewhere it shouldn't be like that. Leadership में
लाइक फीमेल्स इन लीडरशिप बहुत कम है, बहुत ही कम है, मतलब 18% है. एंड देन वहाँ पे जैसे कि मैं बताती हूँ स्टैट्स ऐसे रेगुलरली कि 58% जो फीमेल्स है ना जो MBBS में रहती है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हाफ रहती हैं. उसके बाद क्या होता है कि उस जैसे जो 90 to 95% जो मेल कॉलीग्स होते हैं दे एंटर MD, बट जो 58% की बस 60% या 65% होती हैं जो लड़कियां MD में घुसती हैं. ठीक है, तो नाउ व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर इट. सो वन वुड से दैट दे डोंट क्वालिफाई, विच इज़ नॉट ट्रू. जो क्वालिफाइंग परसेंट है वो 95% ही है, विच इज़ एट लाइक वो इट इज़ एट पार देयर मेल कॉलीग्स. देर आर लॉट ऑफ हिंड्रेंसेज इन अभी हमारा सोसाइटल कल्चर जो भी है लीडरशिप में, मतलब वही वाली बात है. तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी मदरहुड एक प्रॉब्लम है जो सिस्टम बना है ना हमारे साथ में. हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि इट्स नॉट इन सिंक विद द बायोलॉजी ऑफ फीमेल्स. In your training, a lot of girls come to me and tell me कि हमें इतनी बार कैजुअली बोला गया है कि ये ब्रांच तो मत लो बिकॉज लड़कियों के लिए ये सब ब्रांचेस सही नहीं होती हैं, तुम लोग के लिए गायनी ही सही होता है. तो अब उसमें आप बहुत बार कुछ बोल भी नहीं सकते. बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, इवन मुझे भी, मतलब आई रिमेंबर देयर वाज एन इंसिडेंस. ऑल्दो आई वुड से कि प्रोफेसर्स वर वेरी नाइस, बट सम वॉट कभी कभी ना ऐसे कैजुअली कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हो जाती थी. एक बार एक कंसल्टेंट थे जो हम सबको बुलाए, सारे कॉलीग्स को, हम सबको GR2 थे हम लोग, चेंबर में बुला के ही वाज आस्किंग अस कि किसको क्या क्या करना है आगे जाके. एंड ऑल माई बैचमेट्स वर टेलिंग अबाउट कि हमें एसआरशिप करनी है, MD करना है, अरे क्लिनिक खोलना है. व्हेन इट केम टू मी आई सेड कि मुझे या तो बाहर जाना है या मुझे कुछ एडिशनली कुछ एक्सपोजर चाहिए. ही वाज लाइक नहीं 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 नहीं, मतलब लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, देख लो, मतलब सही नहीं है तुम्हारा डिसीजन, तुम सोच लो. आई वाज लाइक नहीं सर क्यों ऐसा है, बट उस वक्त आप ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि प्रोफेसर हैं. और पर ये सब चीज़ें हम जो एक मेंटली लोगों के पास वो रहता है, और लड़कियों का और अथॉरिटी, जैसे ट्रांजिशन फ्रॉम अ रेजिडेंट टू अ कंसल्टेंट लेवल, योर अथॉरिटी इंक्रीजेज बट यू हैव टू प्रूव योर अथॉरिटी ओवर एंड ओवर अगेन वेयर एवर यू गो, जो कि इट्स ऑन ऑटो पायलट फॉर माई मेल कॉलीग्स. जेंडर पे गैप वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट फीमेल्स इन मेडिसिन स्टिल फेस. पल्मोनोलॉजी की अगर बात करूँ मैं, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे व्हिच इज कि वेयर डू यू सी दिस ब्रांच गोइंग लाइक आफ्टर 10 years? I feel that this branch will evolve into a more sophisticated specialty because students are getting aware of the branch, the importance of it. Evolution of sleep medicine, जो कि अभी उतना इवॉल्व नहीं, अवेयरनेस नहीं है. इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, AI थोड़ा बहुत जो है इट विल हेल्प, इट विल कॉम्प्लीमेंट द स्पेशलिटी इन अ लॉट ऑफ वेज. स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, लंग मैलिग्नेंसीज वगैरह जो हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड एवरीथिंग वुड एडवांस. तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन हैज़ अ गुड फ्यूचर. एंड देन लेट्स नॉट फॉरगेट द पोल्यूशन दैट इज एवर इंक्रीजिंग. सो या True, I think the need of respiratory medicine is never going to end. No. It's only going to increase. Yeah. चलो डॉक्टर, अब आपके लिए मेरे पास है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस. बहुत ही सिंपल टू रूल्स है. यू हैव टू बी सुपर स्पॉन्टेनियस एंड सुपर ट्रूथफुल. वन हैबिट एवरी डॉक्टर शुड डेवलप. documenting properly. Documentation is something that is very weak in Indian doctors. And that's the biggest difference between international medicine and Yes, Indian medicine. exactly. We don't document properly. No. Most underrated medical specialty today. Respiratory medicine. Are you sure? Yeah, I feel so. One global city you loved working in. I have worked near London. It's a place called Bedford. It wasn't a global CA place, but London is a global city. So, and I've seen the hospitals in London. So I would have loved to work in London as well. I had an offer from Barts, but I didn't take it because I wanted, like, I was coming back to India. Do you regret it? No, I don't regret it, but I would have still loved, like, had I taken that path, I would have loved that too. I think that would have been a different experience altogether. Yeah, because वहाँ के जो लंदन, स्पेशली सब जगह के हॉस्पिटल से नहीं होते, लेकिन लंदन के हॉस्पिटल आर लाइक होटल्स. Very nice. Book every doctor should read. I think there's a book called The E-Myths Revisited. The E-Myths Revisited. Okay. The E stands for entrepreneurship. okay. So it's a book by Michael Gerbers. It teaches us कि वो जो business वाला है ना, क्योंकि doctors में business वाला acumen, they have to go into business. If you're opening your clinic, it's like a business for you. So it teaches you कि why most of the small businesses they fail and क्या है जो ऐसा जो कि एक business को successful बनाता है. And if I'm allowed to say, एक और book है that I've read, The Millionaire Fast Lane. I think a lot of people have heard about it. Even that changes your perspective a lot.
about money, about going into business. So these books. Your definition of success. I think knowing your why, like your purpose, like what you want to do, Yeah, like compared to what people want you to do versus what you want to do in life. If you're doing what you wanted to do and you're happy doing it, then I feel so fit, theek hai, like you've made it in life. Thank you so much, doctor, for actually helping us, clear everything about pulmonology. Thank you so much. I loved having. I loved being here. Thank you so We much. are more than honored to have you here. It was a lovely discussion. Everything very clearly you have told us about pulmonology, and I absolutely love the NHS part also. Thank A lot to learn. I did not know there's a MIT part to go to London and Yeah. UK. So I'm glad I learned something today. Yeah. And thank you so much, everyone. I believe any friend of yours, or if you want to choose pulmonology as a career, and if you're a female and you have any kind of apprehension, I'm sure after watching today's show, every apprehension in your mind would be cleared. Share it with a friend who wants to choose pulmonology and is looking to be somebody who is very unique in the medicine field. So, thank you so much. And as always, do not forget to like, share, and subscribe. Thank you, and God bless you.